અને મહાપ્રભુજીના સ્ટેન્ડ પ્રમાણે કહીએ તો બ્રહ્મની અંદર કોઈ વિચાર આવ્યા વગર જ જગતના રૂપમાં પરિણમે છે, એટલે એ અવિકૃત પરિણામ છે. તો એટલે આ મેં આટલું સમજી હતી રાજા લાસ્ટ ટાઈમ. હા, સરસ. વાંચો. અવિકૃત પરિણામથી જ કરવાનું છે આજે. તો અવિકૃત પરિણામ ઉપરોક્ત પ્રકારથી વિપરીત ઉપાદાન સોનું કાર્ય ઘરેના રૂપે પરિણમે અને તેમ છતાં જો તેના મૂળ તાત્વિક સ્વરૂપમાં કોઈ પણ પ્રકારની વિકૃતિ કે બદલાવ ન આવે તો તેવા પરિણામને અવિકૃત પરિણામ કહેવામાં આવે છે. એટલે આમાં એવું કહેવા માંગે છે કે જે કારણ જે છે સોનું તે કાર્યના રૂપમાં પરિણમે છે ઘરેણામાં, તો તેના મૂળ સ્વરૂપમાં કોઈ પણ બદલાવ ના આવતો હોય તો તેવા જે રિઝલ્ટ મળતું હોય તેને અવિકૃત પરિણામ કહેવામાં આવે છે. કોઈ વસ્તુ જો અવિકૃત રૂપે પરિણમતી હોય તો તેનું રૂપાંતર તેના મૂળ રૂપમાં શક્ય હોય છે. દાખલા તરીકે સોનાના ઘરેણા સોનાનું અવિકૃત પરિણામ હોય છે, કારણ કે ઘરેણાના રૂપમાં પરિણિત થઈ જવા છતાં સોનાના મૂળ રૂપ તત્વ કે ગુણધર્મમાં કોઈ પણ જાતની વિકૃતિ કે બદલાવ આવતો નથી હોતો. આ જ કારણે સોનાનું ઘરેણાને ઓગાળી નાખવાથી પૂર્વ રૂપમાં રૂપાંતરણ પણ શક્ય હોય છે. એટલે આમાં એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે જે સોનામાંથી ઘરેનું બનવાનું. તો સોનામાંથી જે ઘરે ઓર્નામેન્ટ જે બની જાય છે ત્યારે એને અવિકૃત પરિણામ કહેવામાં આવે છે, કારણ કે જ્યારે તમે સોનાને જ્યારે જે મેલ્ટ થઈ ઘરેનું જ્યારે મેલ્ટ કરી દો ઓર્નામેન્ટને તો એ પાછું એ સોનામાં આપણને મળી જતું હોય છે, તો એને અવિકૃત પરિણામ કહે છે. આટલું હું સમજીશું રાજા. શુડ આઈ રીડ કન્ટિન્યુ? આમાં બંનેમાં ડિફરન્સ આપણે સમજ્યા એ છે કે દૂધમાંથી દહીં બનવું અવિકૃત પરિણામ છે અને સોનામાંથી જ્યારે એના ઓર્નામેન્ટ્સ બનાવીએ છીએ તો એ અવિકૃત પરિણામ છે. એટલે વાઇસ વર્સા, જેમ કારણમાંથી કોઈ કાર્ય પેદા થાય એ કાર્યને પાછું જો એના પોતાના કારણની અवस्थाમાં લઈ જઈ શકાતું હોય તો એને અવિकृत परिणाम कहेवाय. सॉरी, हिंदी में करना है. मतलब कि जैसे हम सोने में से गहनों को बनाते हैं तो उन ऑर्नामेंट्स को अगर हम फर्नेस में डालकर पिघला दें तो हमें वापस वही की वही सोना मिल सकता है, जिसमें से हम कोई नया ऑर्नामेंट बना सकते हैं. तो कारण में से जब कार्य पैदा होता है तो उस कार्य को अगर उसकी कारणावस्था में वापस ले जाया जा सकता हो तो उसे अविकृत परिणाम बोलते हैं. और कारण में से एक बार कार्य पैदा हो जाए फिर उस कार्य को उसकी कारणावस्था में अगर वापस न ले जा सकता हो तो उसे विकृत परिणाम बोलते हैं. जैसे दही में से दूध नहीं हमें वापस मिल सकता है, तो ये उसमें वाइस वर्सा डिफरेंस है. इसे ध्यान से समझना तो आविर्भाव तिरोभाववाद आगे जाकर समझ में आएगा. अविकृत परिणामवाद महाप्रभु जी इस स्टैंड पर बताते हैं कि ब्रह्म में से जगत बनता है, उसी जगत को वापस ब्रह्म में ले जाया जा सकता है. जैसे दूध में से दही बनता है तो दही को दूध के रूप में वापस पाया नहीं जा सकता है, लेकिन गहनों को पिघलाकर हमें सोना मिल सकता है. वैसे कार्य के रूप में बने हुए जगत को उसका तिरोधान जो है वो उसके मूल तत्व में ब्रह्म के अंदर वापस हो सकता है, तो वही कारण अवस्था में वो जा सकता है. इसलिए ब्रह्म और जगत के बीच में अविकृत परिणाम है. ये आगे एक बार पढ़ लो ये पैराग्राफ तो समझ में आ जाएगा. हाँ, जगत ब्रह्मનું અવિકૃત પરિણામ છે. પૂર્વે વિચારી ગયા તે પ્રમાણે બ્રહ્મ જ જગતનું નિમિત્ત અને ઉપાદાન ઉભય રૂપ કારણ છે. જગતના નિર્માણમાં બ્રહ્મ સિવાય બીજું કોઈ પણ તત્વ ભાગ ભજવતું નથી. બ્રહ્મ પોતે જ જગતનું નિર્માણ કરે છે અને પોતે જ જગત રૂપે પરિણમે પણ છે. જગતના અનંત નામ રૂપોને ધારણ કરતું હોવા છતાં બ્રહ્મના સ્વરૂપમાં કોઈ પણ પ્રકારનો વિકાર નથી આવતો.
એટલે અહીંયા એમ જ કહેશે કે જગત ના નિર્માણ કરવામાં બ્રહ્મ સિવાય બીજું કશું હોતું નથી, બધું બ્રહ્મમાંથી જ ઉત્પન્ન થયું છે. બ્રહ્મ જ પોતે જગત રૂપે જગતનું નિર્માણ કરે છે અને એ જગત રૂપે પરિણમે છે. જેમ સોનું ઘરેના રૂપે પરિણમતું હોવા છતાં તે સોનું જ રહે છે, સોનું મટીને કાંઈ ઘરેના બનતા હોતા નથી, તેમ જગત રૂપે પરિણમતું હોવા છતાં બ્રહ્મ પોતે બ્રહ્મ જ રહે છે. એટલે અહીંયા એમ જ કહેશે કે બ્રહ્મ જ્યારે ઘરેના રૂપે પરિણમતું હોવા છતાં સોનું ઘરેનામાં પરિણમે છે તો પણ એ સોનું જ રહે છે. તો સોનું મટીને પછી એ ઘરેના થતા નથી. એવી રીતે જગત રૂપે બ્રહ્મ જગત રૂપે પરિણમે છે પણ એ બ્રહ્મ જ રહે છે એમ કહેવા માંગે છે અહીંયા. એટલે સમુદ્રમાંથી ગમે તેટલું પાણી ઉલેચવામાં આવે, ગરમીથી ગમે તેટલું બાષ્પીભવન થઈ જાય, તેમ છતાં સમુદ્ર એટલો ને એટલો જ પૂર્ણ રહે છે. અપૂર્ણ પરિચ્છિન્ન કે સીમિત જગત રૂપે પરિણમતું હોવા છતાં બ્રહ્મની પૂર્ણતા, અનંતતા કે અપરિચ્છિન્નતામાં કોઈ પણ પ્રકારની ખામી આવતી નથી. વળી ઘરેનાને ઓગાળી દેવાથી જેમ તેનું પૂર્વરૂપમાં રૂપાંતર શક્ય છે, તેમ બ્રહ્મની પણ પ્રલય કરવાની ઈચ્છા થાય ત્યારે જગતને પણ પોતાના સ્વરૂપમાં વિલીન કરી લેશે, તેમ જગત બ્રહ્મથી અભિન્ન થઈ જાય છે. આ કારણે જ શ્રી વલ્લભાચાર્ય જગતને બ્રહ્મનું અવિકૃત પરિણામ કહે છે. એટલે આપે હમણાં સમજાવ્યું એ પ્રમાણે જ કે બ્રહ્મમાંથી જ જગતની ઉત્પત્તિ થાય છે અને પાછું બધું જગત જે છે તે બ્રહ્મમાં જ પછી પ્રલય થાય છે ત્યારે લીન થઈ જતું હોય છે. તો આ જે છે જે સ્ટેન્ડ છે તે મહાપ્રભુ વલ્લભાચાર્યજીનું પણ છે, અવિકૃત પરિણામ કે છે ને. અને અહીંયા એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે સમુદ્રનું પણ એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે કે સમુદ્રમાંથી ગમે તેટલું પાણી ઉલેચી લઈએ પણ તોય એ બાષ્પીભવન થઈ જાય તો પણ એ સમુદ્રમાં એટલું ને એટલું જ એ પૂર્ણ ને પૂર્ણ જ રહેશે. બસ હું આટલું સમજી રાજા. એટલે कि यहाँ अविकृत परिणामवाद की जो मेथड है उसे ब्रह्म और जगत के लिए एक्सप्लेन कर रहे हैं कि जैसे सांख्य ने विकृत परिणामवाद माना है वैसे हम विकृत परिणामवाद नहीं मानते हैं. हम सोने में से जैसे गहनों को बनाते हैं वैसे ब्रह्म और जगत के बीच का इसलिए यहाँ ये कह रहे हैं कि ब्रह्म ही जगत का उपादान और निमित्त कारण है और जगत की उत्पत्ति ब्रह्म के अलावा किसी और तत्व में से नहीं हुई है. मतलब न तो कोई निमित्त कारण के रूप में कोई अन्य तत्व है और न ही उपादान कारण के रूप में अन्य कोई तत्व है. ब्रह्म खुद ही जगत का निर्माण करते हैं और खुद ही जगत के रूप में परिणमित भी होते हैं. मतलब कि जैसे सोने में से हम गहनों को बनाते हैं तो वो गहने जो हैं वो सोना उनके अंदर ही रहता है, सिर्फ उसका आकार बदल जाता है. अब जैसे मान लो कि हमने उसमें से कोई चूड़ी बनवा ली, उसी चूड़ी को पिघलाकर हम सोना लेके उसमें से अंगूठी बनवाना चाहते हो तो ये हो सकता है, क्योंकि चूड़ी के रूप में बनने के बाद भी वो ऑर्नामेंट जो है उसने अपने अंदर रहे हुए सुवर्णत्व को खोया नहीं है. मतलब उसके अंदर जो रहा हुआ सोना है वो सोना ही है. ये अविकृत परिणामवाद का उदाहरण है. जैसे यहाँ पानी का उदाहरण दिया गया है कि फॉर एग्जाम्पल हम कभी पानी को गर्म करें, उसकी जो भाप होती है उस गैसियस फॉर्म के अंदर पानी बन जाता है. उसी गैस को कलेक्ट करके और उसे कंडेंस किया जाए, उसे ठंडक दी जाए तो फिर से हमें वो पानी मिल सकता है. उसी पानी को जब हम फ्रीजर के अंदर रख देते तो डेंस बन के बर्फ बन जाती है. बर्फ को गर्मी दे और पिघला दो तो वापस पानी मिल जाता है. तो ये अवस्था का रूपांतर है, वस्तु नहीं बदलती है. तो उसी प्रकार से ब्रह्म स्वयं ही जगत के रूप में हो जाते हैं. अब ये प्रश्न हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि जगत के रूप में बन जाने के बाद भी ब्रह्म खत्म क्यों नहीं हो जाते हैं. तो उसके लिए हमने देखा था कि ब्रह्म में आनंद गुण धर्म है, इसलिए ब्रह्म की अनंतता की वजह से
जगत के रूप में परिणमित हो जाने के बाद भी ब्रह्म जो है वो घट नहीं जाते हैं, मतलब जगत के रूप में बन जाने के बाद भी ब्रह्म ब्रह्म रहते हैं, जगत जगत रहता है। उसे यहाँ समुद्र के उदाहरण से बताया है कि हम समुद्र में से कितना भी पानी खींच लें, या गर्मी के दिनों में वाटर इवापोरेट होकर बादल में चला जाता है और फिर उसकी बारिश होती है, तो इवापोरेट हो जाने के बाद भी जब हम समुद्र को देखते हैं तो समुद्र की अनंतता की वजह से उसमें से पानी कम हुआ ऐसा हमें पता नहीं चलता है। तो ब्रह्म के अंदर जो आनंद गुण धर्म है उसका मतलब ये है कि ब्रह्म अपरिच्छिन्न है, अनलिमिटेड है, और उस अनलिमिटेडनेस के कारण ब्रह्म के अंदर से कुछ भी कम नहीं होता है, ब्रह्म के अंदर किसी भी वस्तु की कमी नहीं होती है, या ब्रह्म में से हम कितना भी बाहर निकाल लें फिर भी ब्रह्म के अंदर कुछ घटता नहीं है। तो यहाँ ये बात बताई गई है कि ब्रह्म स्वयं ही जगत के उपादान कारण के रूप में जगत को के रूप में बनते हैं। जैसे मैंने बताया कि ब्रह्म के सदंश में से जड़ पदार्थ उत्पन्न होते हैं, ब्रह्म के चिदंश में से जीवात्मा उत्पन्न हो जाती है, आनंद गुण धर्म ब्रह्म के अंदर रहता है। अविकृत परिणामवाद का मतलब ये है कि जैसे ब्रह्म में से हमने जगत को पैदा किया वैसे ही वाइस वर्सा उसकी उल्टी प्रोसेस भी हो सकती है कि जब ब्रह्म जगत का नाश करना चाहते हैं प्रलय के समय, तब वही जितने भी जड़ पदार्थ हैं वो सब ब्रह्म के सदंश के अंदर मिल जाते हैं, जितने भी जीवात्मा है वो सब ब्रह्म के चिदंश के अंदर मिल जाती है। तो अविकृत परिणाम होने की वजह से कार्य कारण जो है वो कार्य बन सकता है और कार्य को वापस उसकी कारण अवस्था में लाया जा सकता है, और उसकी उल्टी प्रोसेस जो है वो विकृत परिणाम में होती है कि हम जब एक बार दूध का दही बन गया तो उस वो दही कभी भी दूध नहीं बन सकता है। लेकिन जगत के साथ ऐसा नहीं होता है, ब्रह्म कारण है, जगत उसका कार्य है, पर जगत के रूप में बन जाने के बाद भी ब्रह्म इंटैक्ट रहते हैं, और जगत को प्रलय करना चाहें तब वो जगत जो ब्रह्म में से पैदा हुआ है वो ब्रह्म के अंदर वापस मर्ज हो जाता है। कुछ पूछना है? हेलो। हाँ હા રાજા, અહીંયા જે કપિલ મુનિની જે વાત છે ને એ જે ભાગવતજીમાં જે વર્ણન છે કે મનુ અને દેવહૂતિના જે પુત્ર છે એ કપિલ મુનિની વાત છે? ના, એ નથી. અચ્છા, એટલે આમાં એવું થાય છે કે ઘણા બધા ઋષિમુનિના નેમ પણ સેમ હોય છે, તો આ જે છે એ અલગ એમનું પોતાનું જે સાંખ્ય મત છે તો એ સાંખ્ય મતના આધારે કોઈ બીજા કોઈ કપિલ મુનિ છે એવી વાત છે? હા, અહીંયા કપિલ નામથી બીજા કોઈ હોઈ શકે એવું અનુમાન છે, કેમ કે ભાગવતજીમાં તો જે કપિલ મુનિ છે એ તો પ્રભુના અવતાર છે, ભગવાનના અવતાર. પ્રભુ જે એ રૂપમાં દેવહૂતિજીને કરદમ અને દેવહૂતિજીને ત્યાં પ્રકટ થયા છે, એટલે એમના વિષયમાં તો એમાં પણ અવિકૃત પરિણામ ઉપર જ એમની વાત છે, એની અંદર એ જ સમજાઈ રહ્યા છે અને પુરુષના કર્તવ્યની વાત છે, તો મને એ જ કન્ફ્યુઝન થયું કે આ કેમ આવું થયું છે. હા, ઠીક છે રાજા. ના, એ તો ત્યાં તો અલગ જ કપિલ મુનિ છે, કેમ કે મહાપ્રભુજીએ ભાગવતજીના સાંખ્યને એક્સેપ્ટ કર્યું છે, તત્વ વિવેચના, અને ભગવદ અવતાર છે. ભાગવત અંતર્ગત જયારે એ આવતું હોય ત્યારે એમાં તો કોઈ નિરીશ્વરતા હોવાનો કોઈ પ્રશ્ન જ નથી ઉભો થતો. જી રાજા. અને રાજા એમને આ બે વસ્તુ એક સાથે બતાવી છે કે વિકૃત પરિણામ પણ હોઈ શકે અને અવિકૃત પરિણામ પણ હોઈ શકે, એટલે એવું એક કહી રહ્યા છે કે હોય, એટલે કેવી રીતે ડિફાઇન કરે છે? વિકૃત અવિકૃત પરિણામની એ બંને મત सांख्य द्वारा प्रपोज्ड નથી. सांख्य मत में केवल परिणामवाद बताया गया है बेसिकली, कि वस्तु का परिणाम होता है, मतलब जैसे उन्होंने कहा कि विवर्त होता है, किसी ने ये कहा कि आरंभ नया आरंभ होता है, किसी ने ये कहा कि अवस्था नहीं बदलती है, वस्तु ही नहीं बदल जाती है. तो ये सब जो डिफरेंसेस हैं उसके सामने सांख्य ने परिणामवाद बताया कि नहीं, कारण ही कार्य के रूप में परिणमित होता है.
अब परिणमित कैसे होता है? विकृत होकर परिणमित होता है कि अविकृत होकर परिणमित होता है? इस बारे में महाप्रभु जी ने ये कहा कि अविकृत परिणाम होता है, और सांख्य वालों ने ये कहा कि विकृत परिणाम होता है। जी राजा, यानी यहाँ पे दोनों मत को कंपेयर करके फिर उसके दो प्रकार दिए गए ऐसा? हाँ, चल कंपैरिजन के लिए ये बात बताई गई है। बाकी सांख्य वालों ने तो विकृत परिणाम माना है, महाप्रभु जी ने अविकृत परिणाम माना है। जी, यानी यहाँ पे जो लास्ट सेंटेंस है, આવી રીતે મહર્ષિ કપિલે सांख्य मतની मान्यता है, तो उनका मत है कि विकृत परिणाम और वल्लभाचार्य जी का मत है अविकृत परिणाम, ऐसा ठीक है ना? हाँ हाँ जी जी राजा। वाचस्पति मिश्र की लिखी हुई सांख्य कारिका है, वो अभी के लिए ये ग्रंथ हमें मिलता है निरीश्वर सांख्य को समझने के लिए। वहां उन्होंने ये सांख्य मत के प्रवर्तक के रूप में कपिल मुनि का नाम लिखा है, लेकिन वो कपिल मुनि के आगे पीछे की कोई डिटेल लिखी नहीं है, इसलिए वो किन्हें कपिल नाम से संबोधित कर रहे हैं वो हम एग्जैक्टली बता नहीं सकते हैं। पर भागवत जी के कपिल तो नहीं ही हो सकते, इतना तो कंफर्म्ड है ही। लेकिन निरीश्वर सांख्य की बात इतनी है कि सिर्फ वाचस्पति मिश्र की सांख्य कारिका में हमें जो मिलता है उतना ही निरीश्वर सांख्य नहीं है, क्योंकि गीता जी ने में भी भगवान ने 13वें 13th क्षेत्र के विभाग योग इस अध्याय में इस निरीश्वर सांख्य को रिफर किया है कि कुछ लोग प्रकृति और पुरुष के संयोग से जगत की उत्पत्ति बताते हैं। तो अगर भगवान ने रिफर किया है उसका मतलब कि हम किसी ऋषि का नाम लें या ना लें, ये थॉट बहुत पुराना है। जब गीता में भगवान रिफर कर रहे हैं उसका मतलब कि ये बहुत पुराना विचार है, इसलिए कोई ना कोई उसके प्रवर्तक या विचारक रहे होंगे। धन्यवाद राजा। हाँ राजा, ये अभी सांख्य जो है वो अभी अप्लाई फिलोसॉफी में है क्या? अभी जस्ट रिसेंटली? हाँ, विकृत परिणाम क्या मतलब सिर्फ टेक्सचुअली है, फॉलोअर्स कोई नहीं। हाँ, मतलब जैसे रामानुजाचार्य के फॉलोअर्स अभी हैं या शंकराचार्य के फॉलोअर्स, ऐसे सांख्य के कोई फॉलोअर्स नहीं है ऐसा? नहीं, फॉलोअर्स कोई भी नहीं है, लेकिन ये मत एक फिलोसॉफी के रूप में प्रवर्तित है अध्ययन के लिए, सिर्फ जानने के लिए कि विकृत परिणाम किसे कहते हैं। पर हिस्टोरिकली मैंने जैसे कहा कि गीता जी में भी अगर भगवान इस मत को रिफर कर रहे हैं उसका मतलब ये है कि ये थॉट बहुत पुराना है। अब उसकी हिस्ट्री हम ज्यादा ट्रेस नहीं कर पाए, पर कहीं ना कहीं मिल भी जाए, कुछ पढ़े हिस्ट्री को तो मतलब थोड़ा रिसर्च करें फिलोसॉफी पे तो मिल भी सकती है। पर वाचस्पति मिश्र ने कपिल मुनि का नाम लिखा है, लेकिन उनकी कोई और डिटेल हमें उपलब्ध नहीं है, एटलीस्ट मेरी नॉलेज में नहीं। और कुछ? धन्यवाद प्रणाम। हाँ, यहाँ पे जो सृष्टि के निर्माण की बात आ रही है, तो ब्रह्मा सृष्टि का निर्माण कई बार करते हैं, तो फिर उसमें जीव और जड़ उनका सर्जन जब करते हैं तो वो कैसे समझना? जैसे एक बार जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो उन्होंने अपने चिदंश से जितनी जीवात्मा प्रकट की फिर दोबारा उतनी ही रहती है या फिर उसमें भी ज्यादा और कम ऐसा कुछ? और उसी तरह जड़ का भी कैसे समझना है वो? अब काउंटिंग तो हम कर नहीं सकते क्योंकि सब कुछ असंख्य है, मतलब एटलीस्ट हमारी काउंटिंग की जितनी प्रेमाइसेस है उस हमारे सामर्थ्य से तो बाहर है काउंटिंग करना जड़ जीव दोनों की। अब उतना ही रहता है या बढ़ता कम हो जाता है ये एग्जैक्टली हम इसलिए बता नहीं सकते। बाकी जगत की उत्पत्ति की मेथड भी बहुत सारी है और प्रलय के बाद अलग अलग प्रकार से अलग अलग मोड में भगवान जगत के पदार्थों की जीवात्माओं की उत्पत्ति करते रहते हैं। क्योंकि जैसे कुछ जीवात्माएं जो वैकुंठ में है, जैसे जय विजय प्रभु के पार्षद हैं या वहां के प्रभु का जो परिकर है, गाय है, व्रजभक्त आदि हैं,
तो उन सब की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म में से नहीं होती है, उन्हें लीला सृष्टि कहा जाता है और हमें सृष्टि लीला के जीव कहा जाता है। मतलब हम सब की उत्पत्ति अक्षर ब्रह्म के द्वारा भगवान करवाते हैं, मतलब वाया करवाते हैं, अक्षर ब्रह्म के द्वारा करवाते हैं। और जो नित्य लीला वैकुंठ लीला के जितने जीव हैं उनकी उत्पत्ति सीधा भगवान अपने आप में से करते हैं। तो ऐसा भी डिफरेंस है जीवात्माओं में, जड़ में भले नहीं है, पर अब वैकुंठ के अंदर प्रभु का जो लोक है, वहां की जो चीजें हैं, जैसे आरोगने की कोई वस्तु हो, विराजने का सिंहासन हो, या वृक्ष आदि हो, पशु पक्षी हो, 84 वैष्णव के भाव प्रकाश में सब वर्णन हमें मिलते हैं। तो उसका मतलब ये है कि वहां की सृष्टि पूरी कुछ अलग प्रकार की है, प्रकट आनंद रूपा है, और अक्षर में से जो प्रकट होती है वो तिरोहित आनंद वाली सृष्टि है। तो ये डिफरेंस रहता है। इसलिए अब जब भगवान महाप्रभु जी ने सिर्फ सृष्टि प्रक्रिया में भेद बताया है कि कभी भगवान माया के द्वारा उत्पत्ति करवाते हैं, कभी खुद स्वयं करते हैं, कभी ब्रह्मा विष्णु शिव से करवाते हैं, तो प्रक्रिया में डिफरेंसेस बताए हैं। बाकी जो डिफरेंस है वो तो जड़ चेतन का रहता है, वो तो रहता ही है, सिर्फ वैकुंठ लोक को छोड़कर। बाकी वैकुंठ के जीवों के अलावा जो कुछ भी पैदा होता है वो सब प्राकृत और आनंद अंश के तिरोधान वाला ही पैदा होता है, इतना तो कन्फर्मेशन है ही, इसमें कभी भी कोई परिवर्तन नहीं होता है। बाकी लोक में परिवर्तन हो जाता हो और ये सब छोटे मोटे चेंजेस तो प्रभु जब चाहे तब कर सकते हैं। जी राजा। पर तिरोहित आनंद वाला होगा, इसमें कोई शंका नहीं। जी, यानी ऐसी कोई सैक्ट बात नहीं है कि अगर इस सृष्टि में इतने जीवात्मा हैं तो फिर इतने ही रहते हैं, उसमें अगर ब्रह्म चाहे तो जीवात्मा भी घट बढ़ सकते हैं। मतलब प्रलय होगा एक राउंड का, मतलब भगवान इन सभी जीवात्माओं का अपने में तिरोधान ना कर लें, उस प्रलय तक तो कोई परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन प्रलय हो जाने के बाद जब नई उत्पत्ति होती है तब के चेंजेस हम नहीं बता सकते। तो प्रलय तक तो जितने जीवात्मा आपने एक बार प्रकट किए हैं उतने ही रहते हैं। तो वो प्रलय जब सृष्टि का सर्जन किया उसी समय सारे जीवात्मा ब्रह्म में से प्रकट हो जाते हैं। हाँ, वो तो हो ही जाते हैं। कमी तो बस मोक्ष हो जाएगा जिनका, वो सृष्टि को छोड़कर चले जाएंगे। जी राजा, क्योंकि हमें सब जीवात्मा तो एक साथ दिखाई नहीं देती है, कभी किसी का जन्म होता है तो कभी मृत्यु होती है। तो यहाँ पर भी जैसे पॉपुलेशन हमें पहले थी इतने उससे ज्यादा अभी दिखाई दे रही है, तो उसके लिए वो एक क्वेश्चन हो रहा था कि ये कैसे समझना है जीवात्मा की काउंटिंग का, पर अब समझ में आया। हाँ, पर उन जीवात्माओं में फिर जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जितने भी, वो भी तो जीव हैं, हम देख नहीं पाते हैं हमारे आसपास। हमारे शरीर के ऊपर भी करोड़ों जीव रहते हैं, तो उस रूप में तो अनंत जीवात्माएं हैं ना, हम काउंट कर पाए उतने नहीं है। हम अब सिर्फ इंसानों की बस्ती काउंट करते हैं, पूरे पृथ्वी पे कितने इंसान हैं, ज्यादा से ज्यादा पशुओं के कर लो, वृक्षों को काउंट कर लो। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की काउंटिंग तो हम कर नहीं सकते, जो हमें दिखते नहीं है, वो तो अनंत है। अब उनके अलावा सिर्फ पृथ्वी पे ही जीव है, जीव सृष्टि, ऐसा भी हम कह नहीं सकते इतने बड़े ब्रह्मांड में। अब जब इतनी मतलब अनंत ब्रह्मांड हो, मतलब मिलियंस एंड ट्रिलियंस गैलेक्सीज हो, तो जीव सृष्टि सिर्फ इस मिल्की वे गैलेक्सी के सूर्यमंडल की पृथ्वी ग्रह में है, ऐसा भी हम नहीं कह सकते। और भी बहुत सारी जगह जीव सृष्टि होती होंगी। ऐसे तो वो तो अब हमारे ज्ञान के एरिया में इतना कुछ हम समा नहीं पाते, इसलिए हमारे नॉलेज कम है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि ये सब परिवर्तन हमें समझ में नहीं आते। बाकी प्रभु का इतना अनंत ब्रह्मांड है, उसमें तो कितना कितना कुछ रोज का रोज होता होगा, हम तो कुछ काउंटेबल भी नहीं है। हमारे अलावा भी बहुत सारी जगह सृष्टि चलती हो, बहुत कुछ होता हो, वहां क्या हो रहा है हम नहीं जान सकते हैं ये।
और ये सब बातें सिर्फ हमारे शास्त्र कहते हो ऐसा तो है नहीं, अब तो साइंस भी एक्सेप्ट करता है कि बहुत सारी गैलेक्सीज है। और एक्चुअली मिल्की वे से तो बहुत बड़ी बड़ी साइज की भी दूसरी सब गैलेक्सीज है, तो वहां तो सृष्टि कैसे चल रही हो, क्या चल रही हो, वो तो हम जानते ही नहीं है। हम तो सिर्फ पृथ्वी इतने छोटे से प्लेनेट के बारे में जो जानते हैं वो जानते हैं, वो भी पूरा नहीं जानते हैं। एक्वा कल्चर है इतना सारा, उनको हम नहीं जानते, इतने पक्षी हैं उनको हम नहीं जानते, तो हम सिर्फ इतना समझते हैं कि जीव सृष्टि तो इतनी है जितने इंसान है, पर उसके अलावा भी बहुत कुछ है। जी, तो कि भगवान के अलावा जो कुछ भी पैदा हुआ वो सब कुछ अप्रकट आनंद वाला है, कोई ना कोई लिमिटेशंस के साथ ही पैदा हुए हैं। इतना जो कहीं भी हो, कुछ भी हो, कोई और ब्रह्मांड में हो, कोई और गैलेक्सी में हो, कोई और सोलर सिस्टम हो या कुछ भी हो, पर आनंद गुणधर्म किसी में नहीं है। सब कुछ परिच्छिन्न प्रकट हुआ है, भगवान अपरिच्छिन्न है, बस ये इसमें कोई चेंज कभी भी नहीं होता है। जी राजा, और आपने जैसे बताया अभी अनेक प्रकार की सृष्टि, तो ऐसे और जो आपने बताया कि जब सृष्टि का सर्जन होता है उसी वक्त सारे जीवात्मा चिदंश का भी सर्जन हो जाता है, हमें दिखलाई नहीं देता, वो अलग है, पर फिर वो कोई नई जीवात्मा प्रकट नहीं होती है। जीवात्मा तो पहले से ही है, माइक्रोबायो जो आपने अभी बताया, और पर जीवात्मा अभी नहीं कहीं कहाँ से भी नहीं आएगी, उनका सर्जन तो उसी समय हो गया होगा, ऐसे ही समझना है ना राजा? शास्त्र की व्यवस्था में वचनों में हमें जितना मिलता है वो तो ऐसा ही है कि अग्नि व्युत्पत्तिलिंग न्याय से भगवान अपने में से इन सभी जीवात्माओं को उत्पन्न करते हैं, और उन सभी जीवात्माओं को दैवी आसुरी के रूप में उनका वरण, उनका मोक्ष, उनकी नियति, ये सब कुछ भी भगवान उत्पत्ति काल में ही डिसाइड करके अविद्या का संसर्ग उनको करवा देते हैं। बस फिर लीला शुरू हो जाती है, फिर चलती रहती है। तो निरूपण तो ऐसे ही मिलता है। बाकी तो प्रभु की सृष्टि है, ऐड करना चाहे तो करे, सब्सट्रैक्ट करना चाहे तो वो भी सही। अब प्रलय के बारे में, ये हम पृथ्वी के ऊपर अभी जिंदा है, लेकिन ऐसी कई जीव सृष्टियों का नाश भी नैमित्तिक प्रलय के रूप में तो हो ही सकता है ना। जैसे कोई ग्रह ही पूरा की पूरा खत्म हो जाता है, मीटियोर्स टकरा जाते हैं, तो अब जैसे पृथ्वी पैदा हुई सूर्य में से, सारे ये सोलर सिस्टम के जितने ग्रह पैदा हुए, तो अब अगर हम एनवायरनमेंट की दृष्टि से साइंटिफिकली इन चीजों को देखें जैसा एस्ट्रोनॉमी बताती है, तो वो लोग तो पृथ्वी की उत्पत्ति भौतिक रूप में यही बताते हैं कि सूर्य में से अलग हुई, बहुत सालों में ये ठंडी हो गई, ठंडी हो जाने के बाद सबसे पहले इसके ऊपर वृक्ष पैदा हुए, उसके बाद सब चैतन्य आते गए। तो साइंस तो ये नहीं कहता है ना जैसा हम कहते हैं, तो वो पृथ्वी की उत्पत्ति भी अलग प्रकार से बताई है। अब अगर हम इस प्रक्रिया को मान लें तो ये एक्सीडेंट हुआ, ये प्लान्ड नहीं हुआ। तो ऐसी उत्पत्ति स्थिति लय जैसे पृथ्वी एक ग्रह के बारे में सोलर सिस्टम में हुआ, ऐसा ही अन्य गैलेक्सीज के अंदर तो चल ही सकता है ना। अभी भी कोई नया ग्रह पैदा हुआ हो सकता है, अभी भी कोई नई जीव सृष्टि आई होगी, कितनी भी खत्म हो गई होगी। तो ये सारे चेंजेस तो हमारी नॉलेज के बाहर हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में चलते रहते हैं, तो हम कुछ कह नहीं सकते इस बारे में। शास्त्रीय निरूपण हमें जितना मिलता है वो इतना है। जी और कुछ पूछना है किसी को? नहीं राजा, क्लियर है। ठीक है, तो फिर आज का यहाँ रखते हैं। आगे का जगत सत्य चेल विषय अगर हम स्टार्ट करेंगे तो फिर वो लेंदी है, और मायावाद के साथ थोड़ा कंपैरिजन भी उसमें आ रहा है। इतना करो, कल हम इसे कंटिन्यू करेंगे। तब तक जगत सत्य चेल टॉपिक को पढ़कर आना। शंकराचार्य जी ने जैसे जगत को मिथ्या कहा है
उसके करस्पॉन्डिंग हम जगत की सत्यता महाप्रभु जी कैसे प्रपोज कर रहे हैं उसे हम कल देखेंगे। तो शंकराचार्य जी ने मिथ्यावाद जैसा बताया, उसके करस्पॉन्डिंग ये पूरा सब्जेक्ट आएगा, इसलिए एक बार दोबारा इसे पढ़ लेना, फिर हम आगे करते हैं। जी राजा, धन्यवाद प्रणाम राजा।